Hello everyone, welcome to NEET Biology Crash course offered by School of Science RK University. So today in the synchronization of other topics, I'm going to discuss with you about the neural control and coordination. What are the importance of neural system, nerve system, or you can say nervous system in our body that we are going to discuss. So as before you knowing that we will start with the hookup activity. So let's start it. Okay, so this is my favorite thinking cap. You have to think what I'm asking, but the thing is it will be tricky. So this thinking cap is telling you that sorry my dear, you are having limited time. So but obvious I have to follow his instruction and I have to give you only how much? Okay, we'll give you 20 seconds. Okay, all right. So your question is this: kindly see the question carefully and answer me. Okay, so what's the black when you buy it, red when you use it, and gray when you throw it? Your time starts now. You are buying something in the form of black color. When you are using, it will become red in color, and when you throw it, it will be in gray color. Think, come on, come on. Please reply me in chat box. Okay, 10 more seconds. Exactly. So the answer is charcoal. When you're buying it, it will be in black color. When you use it, due to heat, it will be red in color. And when you throw it, it will be the charcoal dust will be in the gray color. Thank you for reply. So the main thing about the chapter is the system. What we are going to cover today is the neural system, human neural system, and the structure of neurons, what are the functions of the neuron system, and reflex action and reflex arc. These topics we are going to cover today. So let's start with the first, that is neural system. So as we all knows, nerve system plays very vital role in our body. हमें कुछ भी होता है, that messages are only and only, if you can say, the postman of the body is the neural system. The neural system of all the animal is composed of highly specialized cells called neurons. या neurons क्या है? सारे के सारे जो भी ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल से लेके मैक्रो लेवल तक के सारे एनिमल्स में न्यूरॉन्स जो है are the units of nerve system, and this nerve system are taking yeah, in all the organisms they are having different organization, you can say. सिंपली मैं ये बोल सकती हूँ कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो से लेके मैक्रो तक आप जाओ तो आपको फ्लो दिखेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें यू कैन कंसिडर द लोअर इनवर्टिब्रेट्स, राइट? उसमें एकदम सिंपल टाइप की नर्व सिस्टम आती है. बेटर ऑर्गेनाइज्ड नर्व सिस्टम कौन से एनिमल्स में आती है? इंसेक्ट है, आप कोई भी इंसेक्ट्स ले लो, मॉस्किटोस ले लो, एनी बी यू कैन कंसिडर. तो उन सब के पास थोड़ी सी बेटर ऑर्गेनाइज न्यूरल सिस्टम है, एंड बट ऑब्वियस इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स इट्स हाईली कॉम्प्लेक्स, और यू कैन से मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम जो हम में है, जो एनिमल्स में है. बट ऑब्वियस वी आर सोशल एनिमल्स, तो हम सब में जो न्यूरल सिस्टम है इट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स न्यूरल सिस्टम, और वी कैन से अ कॉम्प्लेक्स nerve system. Okay, so let us start with the neural system of human beings. You can say we are going to learn a complex nervous system. Okay, so let us start. Yeah, so हमारे अंदर, as I am telling you that we are going to learn this human nervous system, तो but obvious वो कैसी है?
कॉम्प्लेक्स है तो डायरेक्टली तो हमें समझ में आएगी नहीं, तो हमारे पास दो अलग अलग टाइप की directions है by which we can get the message and we can reflect accordingly, we can reflect our decision accordingly, right? तो कुछ हमें होता है, right? You can take an example of some, कोई हमें ऐसा करता है कि डराता है, धमकाता है, that is the mental effect. कोई हमें कुछ पिंच करता है तो क्या हुआ, वो फिजिकल इफेक्ट है। तो ये दोनों मैसेजेस अलग अलग नर्व सिस्टम के थ्रू जाएगा। जो भी नियर बाय मैसेजेस जिसको भी देना है, वो नियर बाय मैसेजेस पास होके हमारी अलग अलग नर्व सिस्टम अकॉर्डिंगली एक्ट करेगी। उसके लिए हमारे पास दो अलग अलग सिस्टम्स है। वन इज द CNS, you can call it as the central nervous system. Another is the PNS, which is peripheral. Right, you can see here by the blue color, this is the, yeah, blue and yellow sparkling is the central nervous system. Next is the pink color system, which is peripheral. Peripheral is the available in throughout the body. हमारे पूरे बॉडी में ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर कि पिंक एंड येलो हाईलाइटेड जो सिस्टम है वो पेरिफेरल है, मतलब आपके हाथ में, पैर में, सभी जगह कौन सी नर्व सिस्टम झाली के जैसे होगी, पेरिफेरल। एंड सेंट्रल नर्व सिस्टम ओनली कवर्स टू थिंग्स, योर स्पाइनल कॉर्ड एंड योर ब्रेन, राइट? वो सेंट्रल सिस्टम है। अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है कि पेरिफेरल भी मैसेज तो सेंट्रल तक ही पहुंचाता है, तो सेंट्रल इज द मेन थिंग, बट जो छोटे मोटे काम होता है वो पेरिफेरल निपटा देता है अपनी ओर से। सो माइंड वेल, वी आर हैविंग टू नर्वस सिस्टम इन आवर बॉडी, CNS एंड PNS। CNS में क्या क्या आएगा, ब्रेन आएगा एंड या स्पाइनल कॉर्ड आएगा, एंड इन PNS थ्रू आउट बॉडी वो कवर करेगा। Yeah, so this is the flow chart of CNS and PNS. First, I've distributed this nerve system into two parts, which is CNS and PNS. So we will see here PNS in detail कि PNS में हमारे पास दो अलग अलग classes है. In case of PNS, autonomic जो नर्वस सिस्टम है वो ऑटोमेटिक वर्क करेगा। अनदर इज द सोमेटिक नर्व सिस्टम। ऑटोमेटिक में क्या होगा कि जो आपके ऑर्गन्स है, लाइक आपका हार्ट है, तो वो हार्ट जो है वो डे एंड नाइट वर्क करता है। वो हम रात को सोते हैं तो सो नहीं जाता, राइट? वरना हम कभी उठ ही नहीं सकते। सो इट्स एन ग्रेट एग्जांपल कि वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। हार्ट को बोलना नहीं पड़ता कि अरे भाई तुझे ये ब्लड लेना है, या ये ब्लड फ्लो करना है, ये आर्टरी में जाने देना है, ये वेन में जाने देना है, ये बोलना नहीं पड़ता है। So that all contraction is happening by the automatic nerve system, and another one is the somatic. Somatic जो है उसमें voluntary organs role play करेंगे। इधर autonomic nervous system में involuntary actions होंगे। मतलब आप बोलो कि भाई ये रुकना है हार्ट को, तो वो रुक नहीं सकता, आपके मैसेज अकॉर्डिंग वो हो नहीं सकता। Okay, so we'll see this autonomic nerve system in detail. In case of autonomic nerve system, we are having different two classes. One is the sympathetic division, another is the parasympathetic. In case of sympathetic, आप ये सोचो कि अगर आपके सामने एक लायन आ गया तो क्या होगा? Either you will fight with lion or you will flight. आप चले जाओगे या तो उससे लड़ोगे। But obvious we all know कि we cannot fight with lion, right? Few are having daring, but not everybody is having. तो दो ऑप्शन है हमारे पास, हम लड़ेंगे या तो चले जाएंगे। तो in case of that, हमारा बॉडी डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है। दैट इज द ओल कवरेज ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है वो आपका ये डिसीजन लेगा कि क्या क्या उसमें कंसिडर कर सकते हैं। यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस हार्ट बीट्स आल्सो, saliva secretion also, blood pressure,
कुछ चीज यू कैन कंसिडर कि कोई ऐसी कंडीशन आए कि हम घबरा जाए तो क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। तो वो सारी जो एक्सट्रीम कंडीशंस है वो सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ योर नर्व सिस्टम हैंडल करता है। सिंपैथेटिक डिवीजन में क्या आएगा कि वो सिंपल है, एकदम ऑपोजिट टू द सिंपैथेटिक, कि वो आराम से शांति से ये सब वर्क करने में आपकी हेल्प करेगा। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उसका बैलेंसिंग भी यही नर्व सिस्टम के थ्रू होता है। एड्रेनलिन, नॉन एड्रेलिन, एड्रेलिन जो सिक्रीशन है वो सिक्रीशन भी ये नर्व सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपके बॉडी के साइड से क्या मैसेज आता है। अगर वो एड्रेनलिन सिक्रीशन का मैसेज आता है तो सिंपैथेटिक रोल प्ले करेगा। ऑल दैट हार्मोनल सिक्रीशन इज आल्सो on basis of messages passed by the neuron. नेक्स्ट इन सोमेटिक नर्व सिस्टम क्या आएगा कि दो यहाँ पे divisions है which is sensory and motor. These all things we are going to learn afterwards also. Afferent and efferent, एक जो sensory डिवीजन है वो क्या करेगा, डायरेक्शन देगा कि अगर मुझे कुछ हुआ है तो वो क्या हुआ है उसका मैसेज पास करेगा बॉडी को। फिर बॉडी जो बोलेगा, बॉडी बट ऑब्वियस न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स जो बोलेंगे कि भाई तुझे ये लगा है तो हाथ उठा लेना चाहिए, तो वो क्या होगा, एफरेंट सिस्टम। यानी कि मैसेज जाने वाला सिस्टम इज द एफरेंट। वहां से न्यूरॉन ने जो मैसेज दिया है कि भाई अभी तुझे लगा है तो हाथ उठा ले, तो वो क्या होगा, एफरेंट सिस्टम होगा। ओके, if you are having any doubt in between you can ask me in the chat box. Okay, so we'll move. Yeah, as amino acids are the building block of protein, right? Here nerve system is also having a building block which is called as neuron. Neuron are the building block of the nerve system. पूरी की पूरी nerve system में एक ही type के units continuous synchronization में है और हमें messages दे रहा है, right? That we are going to learn कि एक basic unit of the nerve system में क्या क्या चीजें include होती है और सबका function क्या है, right? So neurons are the structural and functional unit of the neural system. न्यूरल सिस्टम का स्ट्रक्चर भी बनाता है ये और सारे फंक्शंस भी यही करता है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द neural system is neuron. A neuron is microscopic in structure, but obvious we cannot see the neuron, right? हम किसी भी पर्सन का पोस्टमार्टम करके उसकी नर्व सिस्टम हाथ में लेके नहीं देखते हैं, एक एक न्यूरॉन वी कैन नॉट सी, राइट? सो इट इज माइक्रोस्कोपिक, मतलब कि आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही वो सिस्टम देखनी पड़ती है। It is composed of three major parts, and these three parts are very very important. First part is the cell body, जो हमें huge बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इस न्यूरॉन में, दिस इज कॉल्ड एज सेल बॉडी। जहाँ पे आपको ये एरो दिख रहा है, दिस इज द सेल बॉडी। अभी सेल बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हैं? द सेल बॉडी इज कंटेनिंग साइटोप्लाज्म। एज द सेल इज कंटेन साइटोप्लाज्म, कोई भी सेल ले लो आप, प्लांट का ले लो, ह्यूमन बीइंग का ले लो, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ले लो, कोई भी सेल के पास साइटोप्लाज्म होता है वो उसका मेजोरिटी वाटर पोर्शन कंटेनिंग एक ऑर्गेनल है। वैसे ही न्यूरॉन के अंदर भी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है with typical cell organelles, and certain granule bodies are also there. This granule body you can see here with the red color indication. These bodies are known as Neisel's granules, right? ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है, so please focus here. ये रेड कलर की जो ग्रेन्यूल्स है दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नीजल्स ग्रेन्यूल्स। उसका लोकेशन क्या बताया मैंने, सेल बॉडी के अंदर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज डेंड्राइट्स। ओके, डेंड्राइट्स आपको कहाँ पे दिख रहा है? ये
ये स्पाइक्स जैसा स्ट्रक्चर, या कहाँ कहाँ पे दिख रहा है आपको? ऑन द टॉप ऑफ द सेल बॉडी। ओके, तो ये स्पाइक जैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज डेंड्राइट्स। दिस डेंड्राइट्स आर लुकिंग हॉरिबल बट इट इज वेरी यूजफुल। या, सो लेट अस कम टू द डेंड्राइट। शॉर्ट बॉडी फाइबर्स है वो, सेल बॉडी के एग्जैक्ट ऊपर है, छोटे छोटे फाइबर्स है। हालांकि जो नीचे बड़ा सा येलो फिलामेंट दिख रहा है उसके जैसा बड़ा नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज दी शॉर्ट फाइबर्स। वो ऐसा स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि कुछ रिसीव कर सकता है, उसके पास टेंडेंसी है किसी के साथ बाइंड करने की। डेंड्राइट्स स्ट्रक्चर में कैसा दिख रहा है आपको कि वो किसी के साथ बाइंड कर सकता है, ऐसी टेंडेंसी है उसके पास। तो लेट अस सी कि उसके साथ क्या बाइंड होगा, आगे हम देखेंगे। राइट, तो उसके पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स है? उसके पास एक स्पाइक जैसा स्ट्रक्चर है जो कि कुछ भी चीजों के साथ बाइंड कर सकता है, बट ऑब्वियस इट इज वेरी वेरी पर्टिकुलर विद द बाइंडिंग, बट स्टिल इट इज हैविंग सम रिसेप्टर काइंड ऑफ टेंडेंसी। दिस फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्सिस। बेसिकली इम्पल्सिस क्या होता है? जो न्यूरॉन्स message देता है, that are the impulses. Another thing which is present inside the cell body is the nucleus, but obvious nucleus is a heart of any of the cell. आप कोई भी सेल ले लो, ये न्यूरॉन का सेल है, अब बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। एग्जैक्टली, दे आर प्रोकैरियोट्स, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स न्यूक्लियस विल बी देयर। तो न्यूक्लियस पूरे सेल का कंट्रोल करता है, जो भी चीजें उसमें लैकिंग है या एक्सेसिव है वो न्यूक्लियस डिसाइड करके उसका डिसीजन लेके वो सिंथेसिस या तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मैसेज देता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज एक्सोन। पहला क्या बताया हमने? सेल बॉडी, नेक्स्ट इज द डेंड्राइट्स, थर्ड वन इज द एक्सोन। तो एक्सोन क्या है स्टूडेंट्स? एक्सोन जो है वो लास्ट एंड पे आपको दिखेंगे। कहाँ पे? ये आप एरो देखिए, एरो कहाँ पे मूव कर रहा है? लास्ट में, टर्मिनल साइड पे। तो टर्मिनल साइड से लेके ये फिलामेंटस पार्ट आप देख रहे हो, वो सारा टेल टाइप का, राइट? ये टेल जो है उसको हम बोलेंगे एक्सोन। तो ये एक्सोन जो है वो येलो कलर्ड, some periphery is there, I'm sorry, okay, one periphery is there with some cells। वो जो सेल्स है वो भूल जाइए, पर बीच का क्या है? एक्सॉन है। अब देखते हैं कि आजू बाजू में कौन से सेल है, क्या है सब। तो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्वान सेल। ओके, स्वान सेल आपको कैसे दिख रहा है? ये कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जैसे लगा हो वैसे दिख रहा है, और बीच में एक और चीज भी दिख रही है विच इज न्यूक्लियस, राइट? तो स्वान सेल है वो प्रॉपर एक सेल्स है जो इम्पल्सिस को पास ऑन करते हैं। स्वान सेल का बेसिकली फंक्शन ये है कि जो भी इंट्रॉन एक्सोन जो भी मैसेज पास करता है वो सिंक्रोनाइज करे। नेक्स्ट विल बी द एक्सोन, एज आई टोल्ड यू, येलो कलर फाइबर। ये माइलिन शीथ, माइलिन शीथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि माइलिन शीथ नहीं होती तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। माइलिन शीथ इज अ कवरिंग लेयर ऑफ स्वान सेल। स्वान सेल की जो अल्टरनेटिव पोजीशन है उसको कवर कौन करता है? माइलिन शीथ, जिसकी वजह से ये बाइफर्गेशन नहीं होता, इम्पल्सिस कहीं और नहीं चले जाते, राइट? एक सिंक्रोनाइज वे में वो जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द नोड ऑफ रेनवियर। रेनवियर नोड जो है वो दो सेल्स के बीच में आएगा, मतलब कि एक ऐसा नोड जहाँ पे जंक्शन है। जंक्शन के बाद आपका मैसेज रुकेगा नहीं, वो कैरी फॉरवर्ड ही होगा, बट इट इज जस्ट शोइंग द नोड। नेक्स्ट विल बी द एक्सॉन टर्मिनल, जहाँ पे एक्सॉन का एंड आएगा। एक्सॉन टर्मिनल के बाद भी आप देखोगे तो एक कुछ सर्कुलर ग्लोब्यूलर ऑर्गेनल दिख रहा है आपको, वो हम कह सकते हैं कि साइनेप्टिक नॉब है। अभी साइनेप्टिक नॉब इज हैविंग टू मच कॉम्प्लेक्स mechanism of ion exchanging। इट इज ऑल्सो एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी मैसेज आता है वो साइनेप्टिक नॉब उसको कैरी करके पास ऑन करता है। तो इन केस ऑफ दिस ऑल थ्री बॉडी पार्ट्स, साइनेप्टिक नॉब का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है, राइट? आई होप यू गाइज आर
Done with this cell body, dendrites, and axon structure. If you are having any doubt, you can ask me in the chat box. Okay, so we have already discussed this, but you can see here the first one where my arrow is the cell body. उसके आजू बाजू क्या है? बहुत सारे डेंड्राइटिस है. डेंड्राइटिस का स्ट्रक्चर क्या है? स्पाइकी, राइट. नेक्स्ट इज द सेल बॉडी. सेल बॉडी के अंदर आप ये न्यूक्लियस भी देख सकते हो, और ये जो इम्पल्सिस आते हैं वो कैसे जाते हैं? सिंक्रोनाइज वे में. जो बीच में फिलामेंट दिख रहा है आपको वो है एग्जैक्टली एक्सोन का फिलामेंट है. उसके आजू बाजू जो ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर या स्वान सेल है एग्जैक्टली, एंड दी माइलिन शीथ है. स्वान सेल एंड माइलिन शीथ का फंक्शनल कंबाइनली क्या है? इम्पल्सिस को एक डायरेक्शन देना. अगर वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होगा तो बाइफर्गेशन हो जाएगा, उसकी वजह से इम्पल्सिस पूरे स्प्रेड हो जाएंगे और आपका मैसेज डायरेक्ट पास नहीं होगा, राइट. Here I have given some functions, very important functions of the different organelles present in the न्यूरॉन. न्यूरॉन के अंदर जो भी न्यूक्लियस है, एक्सोन है, माइलिन शीथ है, एक्सोन टर्मिनल, स्वान सेल है, रेनवियर नॉड है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, उन सब के फंक्शंस यहाँ पे ब्रीफ में दिए हैं, सो यू कैन गो थ्रू दैट. Okay, so this was about the neuron. Next we will move towards the कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. अभी ये जो आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा है, ये वाला जहाँ पे एरो है और ये जो व्हाइट लाइट पास हो रही है, दैट इज द इम्पल्सेस, दैट आर द मैसेजेस, राइट. वो मैसेज कैसे पास होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. जनरेशन मतलब कि वो स्टार्ट कैसे होता है, नर्व इम्पल्स स्टार्ट कैसे होगा, एंड उसका कंडक्शन बॉडी में, बॉडी क्या इफेक्ट शो करेगा, वो आएगा जब बॉडी के अंदर बॉडी को ऐसा लगेगा कि अभी मुझे ये करना है, तो ये मैसेज फुलफिल करने के लिए, आई मीन मुझे यहाँ पे गरम लगा, कुछ गरम लगा या कुछ ठंडा लगा, तो उसके लिए बॉडी को क्या करना है, क्या कंडक्शन होना चाहिए बॉडी का, दैट we are going to discuss. That is known as generation and conduction of the nerve impulses. Okay, so we will start with the characteristics. न्यूरॉन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो वे न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज ऑफ देयर मेम्ब्रेन्स आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट, राइट. वो ऑलवेज एक्साइटेबल सेल्स के फॉर्म में होगा. एक्साइटेबल मतलब कि वो उसके पास प्लस एंड माइनस दोनों चार्ज है. वी आर कॉलिंग इट एज दी पोलराइज स्टेट. वो ऑलवेज प्लस एंड माइनस चार्ज के बीच में एक्साइट करेगा, यानी उसके प्लस, इफ आयंस ज्यादा आ गए तो भी वो एक्साइट हो जाएगा, इफ आयंस कम हो गए तो भी इम्बैलेंस की वजह से वो एक्साइट हो जाएगा. सो दिस इज द एक्साइटेबल फॉर्म ऑफ द न्यूरॉन्स. एवरी न्यूरॉन इज ऑलवेज इन द एक्साइटेबल फॉर्म कि उसको प्लस माइनस का बैलेंस करना होगा. Different types of ion channels are present on the neural membrane. Ion channels are present on the neural membrane, as we can see here in the diagram ki plus and minus indication hai, that we are going to discuss in detail, but simply you can see here कि उसके पास plus and minus ion channels है. तो कौन कौन से ions है उसके पास? These ion channels are selectively permeable to different ions. Now what is this word selectively permeable? is सपोज बॉडी ने, न्यूरॉन का ही स्ट्रक्चर ले लीजिए, उसके पास जो आपको ये गैप दिख रहा है, ये गैप में से कोई भी आयन जाएगा और कोई भी आयन आएगा, राइट. तो आप कंसिडर कर सकते हो कि ये जो चैनल है उसके पास न्यूरॉन ने एक वॉचमैन बिठाया है. वो डिसाइड करेगा कि इसको अंदर आने देना है या नहीं आने देना है. अंदर सब जा सकते हैं, सब आ सकते हैं, पर उसके लिए उसके पास प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए. लाइक दिस इज नॉट अलाउिंग नेगेटिव आयंस टू गेट इनसाइड.
Okay, so it is again the selectively permeable. सिलेक्शन करेगा, वहां पे वॉचमैन है वो सिलेक्शन करेगा कि भाई आप Na+ हो, आप K+ हो, आप अंदर जा सकते हो, आप Cl- हो, आप वहां पे नहीं जा सकते. सो दैट इज द सिलेक्टिव परमिएबिलिटी. तो एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके पास क्या है? न्यूरॉन मेम्ब्रेन्स आर हैविंग सिलेक्टिव परमिएबिलिटी. ओके, सो अब हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम है वो दो कंडीशन में, अलग अलग दो कंडीशन में अवेलेबल है. First condition is the resting condition. What we are calling it as the when a neuron is in resting condition. अभी वो रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, तो क्या होगा? रेस्टिंग कंडीशन में कोई भी मैसेज पास नहीं होगा, राइट? तो ये मैसेज पास नहीं होगा तो एक्सोन मेम्ब्रेन के पास K+ को परमिट कर देगा, पोटेशियम आयन को परमिएबिलिटी देगा. उसकी ये बेसिक टेंडेंसी है कि पोटेशियम आयन परमिएबल है वहां पे जाने के लिए. इम्परमिएबल कौन है? Na+. सोडियम आयन, वो सोडियम आयन को अलाउ करेगा नहीं. Simply you can say here impermeability to the negative proteins from the exoplasm. एक्सोप्लाज्म है उसमें से. यहाँ पे क्या जनरेट होगा कि बाहर की साइड पे जो भी बैलेंस है और अंदर की साइड पे जो आयोनिक बैलेंस है, यू कैन सी हियर Na+ इज एट द आउटसाइड, राइट? नेगेटिव जो है उसको आप K+ से कंसीडर करना है. यहाँ पे सभी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि कुछ है वो नेगेटिव चार्ज है, कुछ है वो पॉजिटिव चार्ज है, बट ऐसा कंसीडर नहीं करना है. द अमाउंट आपको कंसिडर करना है हियर, द अमाउंट ऑफ द K+ आयन इज लोअर देन Na+ आयन. दैट्स व्हाई वी आर मेंशनिंग इट एज द प्लस एंड माइनस. यहाँ पे बेसिक टेंडेंसी क्या है कि कंपल्सरी 3 Na+ एंड 2K+ विल बी इन बैलेंस. तो कम अमाउंट किसका हुआ? K+ का. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग K एज द माइनस चार्ज. माइनस चार्ज हम नहीं बता रहे, उसका माइनस क्वांटिटी बता रहे, उसकी क्वांटिटी कम है एज कंपेयर टू Na+ आयन. दैट्स व्हाई वी आर mentioning here minus as the K+. Okay, so यहाँ पे क्या होगा? दिस आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम. यहाँ पे जो भी आयोनिक ग्रेडियंट होगा, मतलब कि Na+ एंड K+ का आयोनिक ग्रेडियंट होगा, वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट चेन क्रिएट करेगा. दैट वी आर कॉलिंग इट एज द सोडियम पोटेशियम पंप, राइट? देखिए आप इधर, it transport 3Na+ outwards for 2K+ into the cell. तो ज्यादा अमाउंट किसका हुआ? वही 3Na+ is balancing 2K+. Na+ जो है वो 3 मॉलिक्यूल बैलेंस करता है 2K+ से, तो ज्यादा हुआ Na+ का. दैट्स व्हाई वी आर mentioning Na+ as plus and K+ as minus because of its quantity. As a result, the outer surface of the axonal membrane, जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है उसकी outer surface की बात कर रहा है, it possesses a positive charge while its inner surface becomes negatively charged and therefore it is polarized. Okay, the electrical potential difference across the resting plasma membrane is called as resting potential. Okay, so here you can see in detail कि ये कैसे पास होता है. देखिए भाई, ये जो स्पाइकी स्ट्रक्चर है ये क्या है? डेंड्राइट्स है. यहाँ से देखिए आप, मैसेज पास हो रहा है. मैसेज पास होते टाइम प्लस एंड माइनस की डायरेक्शन देखिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लस एंड माइनस कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है. तो यहाँ पे जो इनर साइड है, ये जो एक्सॉन देख रहे हैं आप, फिलामेंट, ये एक्सॉन की एज है और उसके अंदर का ये देखिए आप, दिस इज द इनर साइड एंड दिस इज द आउटर साइड ऑफ द एक्सॉन. तो एक्सॉन की इनर एंड आउटर साइड पे एक मैसेज की वजह से कितना फ्लक्चुएशन होता है. प्लस एंड माइनस चार्ज इज गेटिंग इनसाइड एंड आउटसाइड, एंड यहाँ पे
आप देख सकते हो कि आफ्टर द मैसेज ये फिर से पोलराइज होता है। एक मैसेज आता है, उसको पास करने के लिए ये डीपोलराइज होता है, मतलब कि आयोनिक एक्सचेंज होता है, और फिर से बैलेंस करने के लिए ये पोलराइज होता है। तो ये जो सीक्वेंस है इट विल बी गोइंग ऑन। This is the short keys what I have explained in previous slide. These are, yeah. So next is another state of the neuron. पहला state क्या था न्यूरॉन का? Resting. Now next state is the stimulus, right? When a stimulus is applied on which neuron? Okay. So here what is happening कि एक message pass हो रहा है, right? When a stimulus applied, a message is passing. यहाँ पे एक्सोन मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो जाएगा Na प्लस के लिए, क्योंकि मैसेज पास करना है, बट ऑब्वियस उसको ऐसे ही नहीं रहना है। इन केस ऑफ रेस्टिंग फेज वो Na प्लस के लिए परमिएबल नहीं था, बट यहाँ पे क्या होगा, वो Na प्लस के लिए परमिएबल हो जाएगा। यहाँ पे अगेन रैपिड इनफ्लक्स होगा। रैपिड इनफ्लक्स विल बी ऑफ Na plus ions. Quickly Na plus ions will get inside the axon membrane. Next will be the polarization, charge will be differ, right? So that polarization की वजह से जो Na plus K plus fluctuation होगा, again वो message pass करेगा और depolarize होता जाएगा. The difference in potential will be the action potential. Here डिफरेंस एक ही है दोनों में कि वहां पे एक्टिव पोटेंशियल जनरेट होगा इन केस ऑफ रेस्टिंग फेज, यहाँ पे स्टिम्युलस के केस में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। सेकेंड थिंग यू कैन ऑब्जर्व हियर फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड कि Na प्लस जो है वो परमिएबिलिटी के थ्रू अंदर आ जाएगा, एक्सोन मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा Na प्लस, एंड K प्लस विल गो टू द आउटसाइड, K प्लस जो है वो बाहर जाएगा। दिस विल अगेन जनरेट द रेस्टिंग पोटेंशियल एंड दिस थिंग्स विल हैपन अगेन, राइट? ये जो प्रोसीजर है वो रिपीट होती जाएगी, क्योंकि जब तक पूरा मैसेज बॉडी को नहीं मिल जाता है, ये एक एक न्यूरॉन की जो चेन है वो सेम मैसेज पास करेगी। अगर आपको टॉ में कुछ हुआ है तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम जो, अगर वो सिंपल है, कुछ भी थोड़ा सा लगा है, तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम ये मैसेज पास करेगी। पर पेरिफेरल नर्व सिस्टम में भी बहुत सारे न्यूरॉन्स आएंगे, तो सारे न्यूरॉन्स ये रेस्टिंग एंड स्टिमुलस कंडीशन की चेन में पास होके आपको एक मैसेज देंगे। Okay, so what we learn is the neurons conditions in case of resting phase and in case of stimulus phase, right? अगर न्यूरॉन ऐसे ही शांत पड़ा है तो कुछ मैसेज पास होगा, then it will come to the stimulus phase where actually the message will be on the action, right? तो ये जो प्रोसेस है वो सिंक्रोनाइज है, उसी के बेसिस पे से नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। यू कैन सी इन द फिगर कि यहाँ पे एट द लोअर साइड ऑफ द स्लाइड यहाँ पे आपको एक ह्यूमन बींग का पैर दिख रहा है, राइट? उस पैर में कुछ लगा है। अगर वहां पे कुछ लगा है या कोई भी किसी भी टाइप की इंजरी हुई है तो वो मैसेज पास करेगा। मैसेज जो पास हो रहा है मतलब कि यहाँ पे कुछ सेंसेशन है, ये वाला मैसेज हमने ब्लू लाइन से इंडिकेट किया है। इधर आप देख सकते हो, इधर मसल स्पिंडल है, मसल स्पिंडल में कुछ हुआ है सेंसेशन, तो वो सेंसेशन कहाँ से ब्लू लाइन से पास होके यहाँ पे आ गया, ये जो है वो जंक्शन है, राइट? ये मोटर जंक्शन है जहां तक मैसेज पहुंचा है कि भाई मुझे लगा है। अभी थोड़ा सा लगा है, अगर थोड़ा सा सेंसेशन हुआ है कोई भी चीज का, चलो आपको चींटी काट गई, राइट? तो थोड़ा सा भी
सेंसेशन है तो वो डायरेक्टली ब्रेन तक नहीं जाएगा, वो पहले पेरीफेरी न्यूरल सिस्टम को कोऑर्डिनेट करेगा कि भाई ये सा हुआ है, क्या करना है। तो पेरीफेरी नर्व सिस्टम क्विकली रिस्पॉन्स देगा कि भाई ये कर लो, राइट। अगर कुछ मेजर है तो वो ब्रेन को मैसेज पहुंचाएगा और ब्रेन जो एक्ट करेगा वो फॉलो करेगा, राइट। पहले यहाँ पे डोर्सल रूट के थ्रू जो ब्लू लाइन है वो आप देखिए, तो वो ब्लू लाइन क्या इंडिकेट करेगी कि भाई इंटर न्यूरॉन है कुछ, वो न्यूरॉन कोऑर्डिनेट करता है, लाइक इट इज अ फर्स्ट लेवल ऑफ मैसेज पासिंग सिस्टम, कि वहां पे फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंसिंग होता है, वो आपको बोलेगा कि भाई क्विकली आपको ये कर लेना चाहिए जिससे कि आपको सेंसेशन ना हो, राइट। अगर हमें ईचिंग होता है तो हम ऐसे ही वेट नहीं करते कि ब्रेन क्या मैसेज पास करेगा, क्विकली व्हाट वी आर डूइंग इज ईचिंग, राइट। अगर हमें कुछ लगा है तो हम क्विकली वो फॉलो करेंगे, वो फॉलो करने वाला मैसेज जो है वो किसने दिया होता है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम ने, राइट। तो यहाँ पे ब्लू लाइन इज द afferent pathway of the nerve system. Afferent pathway is the message which is passing by the sensation. किसी भी मसल या तो किसी भी टिश्यू में सेल में इंजरी हुआ है, वो इंजरी का मैसेज जो पास होगा, वो मैसेज पास करने वाला पाथवे है, इज नोन एज एफरेंट पाथवे। अभी मुझे ये कुछ हुआ है, राइट, इट इज द एफरेंट पाथवे। अभी तुम्हें ये करना चाहिए इज द इफरेंट पाथवे। ओके, एफरेंट एंड इफरेंट। एफरेंट जो है वो ऑर्डर करेगा कि भाई ये मुझे हुआ है, इफरेंट जो है वो सॉल्यूशन देगा कि अभी तुम्हें ये करना चाहिए। तो यहाँ पे blue line is the afferent pathway. Same way, another cycle is there which I have shown by the pink color. So this pink color is showing you the efferent pathway. Efferent pathway के पास में क्या होगा, solution होगा, right, कि ये हुआ है ये करो। तो efferent is always giving you the solution, afferent is not giving you the solution. This is the content what I told you in the previous slide of this, but obvious. Yeah. So आप ये इमेज को आराम से देखिए, यहाँ पे एक नीडल जैसा है, आई एम शोइंग यू बाय द कर्सर। या ये जो नीडल है वो यहाँ पे लगा ऑन द नी, एंड यहाँ से कैसे मैसेज पास होता है वो आप देखिए। या ओके, यहाँ पे लगा, देन यू सी द मैसेज इज गोइंग टूवर्ड्स ग्रीन लाइन, एफरेंट पाथवे के पास जाएगा, एंड देन एफरेंट पाथवे से यहाँ पे रेड लाइन पे वो क्रॉस करेगा, देन पर्पल लाइन विच इज द इफरेंट पाथवे। नाव ये इम्पल्स के पास मैसेज आ गया कि तुम पैर को ऐसा कर लो, तो पैर ने ऐसा कर दिया। ओके, सो दीज आर द मोटर नर्व्स विच आर मेन, विच आर गिविंग द सॉल्यूशन, विच आर गिविंग द मैसेज कि अब ये करना है। सो दिस इफेक्टर इज शोइंग द इफेक्ट कि भाई ये हुआ है, एंड द एफरेंट पाथवे इज गिविंग यू द सॉल्यूशन कि अगर पैर में कुछ लगा है पैर सीधा कर लो, राइट, या तो फिर ऐसे मूव करो। So here you can see the importance of this peripheral nerve system. यहाँ पे हमने डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व नहीं किया है, स्पाइनल कॉर्ड से बाईपास होके ही सारी प्रोसीजर कर ली है, मतलब वो इंजरी कैसी है, माइनर है, राइट। माइनर इंजरी के केस में हम लोग क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड या तो ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, अगर वो माइनर है तो ही, पर अगर वो मेजर है देन बट ऑब्वियस इट विल गो टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। या अगर क्लास में
थोड़ा सा कुछ होता है तो हम डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास नहीं जाते, किसके पास जाता है? क्लास टीचर के पास में। वैसे ही सब कुछ जो हैंडल है वो पेरिफेरल कर लेगी, पर कुछ मेजर होगा तो वो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के पास जाके सीएनएस को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करेगी। तो आज हमने क्या पढ़ा कि न्यूरॉन्स जो है वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। न्यूरॉन जो है वो कौन कौन सी बेसिक चीजों से बने हुए होते हैं। सभी क्लास के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग नर्व सिस्टम होती है। न्यूरॉन्स के पास बेसिक चीजें सेल बॉडी है, रिसेप्टर्स आर यू कैन कॉल्ड इट एज द डेंड्राइटिक सेल, एक्सोन है, ये सब चीजें मेन होती है। और यही यूनिट से पूरा नर्व सिस्टम बना होता है विद द मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट। पूरा नर्व सिस्टम एक नेट की तरह फैला हुआ होता है बॉडी में। उसके दो टाइप्स भी हमने देखे, पेरिफेरल सिस्टम एंड सेंट्रल नर्व सिस्टम। ये दोनों ही नर्व सिस्टम एकदम से इम्पोर्टेंट है, तो आप ये भी रिवाइज करके पढ़ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट व्हाट वी लर्न इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ द न्यूरल इम्पल्सेस। न्यूरल इम्पल्सेस आते हैं तो कैसे Na प्लस एंड K प्लस कोऑर्डिनेट करता है, कैसे आयंस बैलेंसिंग होता है, पोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन कैसे होता है। एंड बट ऑब्वियस दिस इज द आर्क ऑफ द मैसेज पासिंग सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का ये जो रिफ्लेक्स आर्क है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है फॉर योर नीट एग्जामिनेशन एज वेल फॉर योर फर्दर स्टडीज। तो आप ये सब चीजें ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इसमें कोई भी क्वेरी है, you can mail me on my mail id I have given you on the starting of the presentation, bansuri.kami@rku.ac.in. You can write your query here also in chat box. So here we are ending the presentation. Yeah, I hope you guys like the video, and if you are having any further query, feel free to contact me at any time. So here you can see the slide with the admissions open. We are welcoming you for any of the information you wanted to have. You can call on this given number. We are running with lot of programs for biology peoples also, B Farm, BAMS, Farm D, M Farm, B Farm, BSc MRIT, BPT, DMLT, lots of programs as well, given all the programs of BBA, BCA, BCom, MTech, MBA, all the programs, right? So if you are having any query, you can contact on this number as well on, or you can go with the website also, www.rku.ac.in, or inquiry@rku.ac.in. We are always happy to have your inquiry and to solve your problem. Thank you so much. Hope you guys enjoy.